ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں ذکی صدیقی۔ پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر و اطراف میں نہایت عقیدت مگر سادگی سے منائی گئی آجہانی اہلیہ بائی ہولکر کی جینتی، مختلف فلاحی پروگرامز منعقد۔ بریک دا چین کے تحت لگائی گئی پابندیوں کی میعاد میں وزیر اعلیٰ نے کیا 15 جون تک کا اضافہ، مگر شہریان کی سہولت کے لیے دی جائے گی کچھ چھوٹ، شہریان سے محتاط طریقے سے کاروبار کرنے کی اپیل۔ MLA سنجے شیرساٹ کی کاوشوں سے جسمانی طور پر اپاہج شہریان کے لیے شروع کی گئی ویکسینیشن مہم، ریلوے اسٹیشن MIDC علاقے کے لہوجی ساڑوے ہیلتھ سینٹر میں کیا گیا انتظام۔ اور کورونا حالات سے پریشان ضرورت مند شہریان کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھجوائے جدید وینٹیلیٹرز، آکسیجن کنسنٹریٹرز اور میڈیکل کٹس۔ خانگی دواخانوں کے ذمہ داران سے معاہدہ کر کے غریبوں کو مفت میں فراہم کروائے جائیں گے وینٹیلیٹرز، کہا MP امتیاز جلیل نے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آجہانی اہلیہ بائی ہولکر کی 296ویں جینتی شہر میں نہایت جوش و خروش اور عقیدت سے منائی گئی اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ناظرین، شوہر کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد پر پہلا حق اس کی بیوی کا ہونے سے متعلق اعلان کر کے اس پر صوبے میں عمل آوری کروانے والی، بیوہ کو بچے گود لینے کا حق دلانے والی، لڑکیوں کی انٹرکاسٹ میرج کروا کر اپنے ہی گھر سے اس پر عمل شروع کروانے والی، ہنڈا بندی، درختوں کا قتل اور جنگلوں کے صفائی پر روک لگانے والی آن جہانی اہلیہ بائی ہولکر کی 296ویں جینتی آج شہر میں نہایت عقیدت سے منائی گئی۔ اسی ضمن میں کوکن واڑی میں موجود ان کے قداور مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کثیر تعداد میں کوکن واڑی پہنچے اور ان کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح جے ملہار پرگتی منڈل اور اہلیہ دیوی ہولکر اسمارک مکندواڑی کی جانب سے بھی ان کی 296ویں جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر جے ملہار پرگتی منڈل اور اہلیہ دیوی ہولکر اسمارک کے اشتراک سے ضرورت مند افراد میں اناج تقسیم کیا گیا اور مسابقتی امتحان میں کارآمد ثابت ہونے والی کتابیں طلبہ میں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر ریاست مہاراشٹر کے سابق فیڈریشن ڈائریکٹر ڈاکٹر سبھاش مانے نے ان کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ جے ملہار سینا کے سر سیناپتی لہوجی شیواڑے کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں پرلہاد بنسوڑے، بھانو داس تورے، سریش ٹھومرے، منجاجی جگاڑے، شالنی پاٹل، شری ہری پاٹل، کڑوبا مساڑ، پانڈورنگ کانگٹے اور دیگر افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تاریخ ساز خاتون و سماج سدھارک اہلیہ بائی ہولکر کی جینتی نہایت احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر ساتارا کھنڈوا میں عطیہ خون کیمپ منعقد ہوا، ساتھ ہی آجہانی رہنما کے مجسمے پر گل پوشی کے ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اہلیہ دیوی کے مجسمے و اطراف کی بہترین سجاوٹ اور روشنائی کا اہتمام کیا گیا و اطراف کو صاف ستھرا کیا گیا۔ اہلیہ بائی کی سماجی خدمات سے جذبہ پا کر ایک عطیہ خون کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سماج کی نامور شخصیات و ممائدین نے شرکت کی، جن میں خصوصی طور پر آل انڈیا دھنگر سماج مہاسنگھ کے سنگٹھن منتری سومی ناتھ شرانے، سبھاش پارکھے، ونود سولنکر، وشال ہونونے، گنیش دیوکتے، ارون پارکھے، ایشور پارکھے، لکشمن سولٹ، دلیپ آرتے، جیجا کالے، یوگیش پارکھے، شنکر سونونے، رامیشور شندے، سریش باہولے اور دیگر کثیر تعداد افراد موجود تھے۔ تعلقہ سلوڑ میں بھی آجہانی اہلیہ بائی ہولکر کی جینتی نہایت عقیدت کے ساتھ مگر سادگی سے منائی گئی۔ تعلقہ سلوڑ میں آجہانی اہلیہ بائی ہولکر کی جینتی سوشل ڈسٹنسنگ کا اہتمام کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ منائی گئی۔ اورنگ آباد جلگاؤں روڈ پر موجود اہلیہ بائی ہولکر چوک پر لگائے گئے ان کے نام کے بورڈ پر سلوڑ بلدیہ کے نائب صدر عبدالسمیر کے ہاتھوں پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر عبدالسمیر نے اعلان کیا کہ ملک و بیرون ملک
کہ سیاح غارہائے اجنتا کی سیر کو جاتے ہیں اور اس وقت اہلیہ بائی چوک سے گزرتے ہیں، لہٰذا ان کی تاریخ اور ان کی سوانح سے متعلق انہیں جانکاری ہو، اس غرض سے مملکتی وزیر عبدالستار کے فنڈ سے یہاں کا بیوٹیفیکیشن کیا جائے گا۔ اس موقع پر شیو سینا کے نائب ضلع صدر کشور اگروال، کونسلر ستیش دودھے اور دیگر موجود تھے۔ MCN نیوز کے لیے گجانن گپتا کی رپورٹ۔ ریاست میں سخت لاک ڈاؤن تو نہیں، لیکن پابندیاں ہنوز جاری رہیں گی، اس طرح کا اعلان گزشتہ روز ریاست کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے عوام کے نام اپنے خطاب میں کیا ہے۔ کورونا کے وبائی حالات کے تناظر میں گزشتہ شب ریاست کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ریاست کی عوام سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ریاست بھر کورونا کے اثرات میں کمی تو آتی دکھائی دے رہی ہے اور اب متاثرین کی ریاست گیر تعداد 18,000 تک آ چکی ہے، لیکن پہلی لہر میں یہ تعداد سب سے اونچی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے بتلایا کہ اب متاثرین کی تعداد دیہی علاقوں میں بڑھتی دکھائی دے رہی ہے اور اس اثر کو بھی کم کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ اسی کے پیش نظر گو کہ ریاست میں اب سخت لاک ڈاؤن نہیں رہے گا، لیکن پابندیاں اب بھی برقرار رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وبا کے اثرات کم تو ہوئے ہیں، لیکن اب بھی جتنا فرق پڑنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا ہے۔ ادھو نے خبردار کیا کہ دوسری لہر کا وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، جس کے سبب سخت لاک ڈاؤن نہ صحیح پابندیاں برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کچھ اضلاع میں اب بھی کورونا کے اثرات کے اضافے کی جانب بھی وزیر اعلیٰ نے توجہ دلوائی۔ نیز اس لہر اور بے چین کے حالات میں حکومت کی جانب سے ضرورت مندوں کو پہنچائی گئی امداد کا خلاصہ کرتے ہوئے ٹھاکرے نے کہا کہ اناج تحفظاتی یوجنا کے تحت ان کی حکومت نے اب تک 2,74,000 میٹرک ٹن اناج کی مفت تقسیم کی ہے۔ شیو بھوجن اسکیم کے تحت کم و بیش 55 لاکھ بھوجن تھالیاں مفت فراہم کی گئی ہیں۔ سنجے گاندھی نرادھار یوجنا معذورین کے وظائف و بیواؤں کے وظیفوں میں 850 کروڑ روپے متعلقہ مستحقین کے کھاتوں میں جمع کروائے گئے ہیں۔ اسی طرح بے روزگار و پریشان حال پھیری والوں کے لیے 52 کروڑ کی امداد دیے جانے کا خلاصہ بھی وزیر اعلیٰ نے کیا۔ ویکسینیشن سے متعلق انہوں نے کہا کہ اپنے حصے کے ویکسینیشن کے لیے ریاست یکمشت 52 کروڑ ویکسین خریدنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وبا کی تیسری لہر میں بچوں کے متاثر ہونے کے خدشے کے تحت ریاست کے عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنے نونہالوں کی خصوصی نگہداشت کریں۔ انہوں نے بریک دا چین میں عوام کے بہتر تعاون پر ریاست کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں حکومت اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہونے کی عہد بند ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے لاک ڈاؤن کی میعاد 15 جون تک بڑھا دی ہے، لیکن ایسے اضلاع جہاں کورونا کا زور کم ہو چکا ہے وہاں نظام زندگی بحال کرنے سے متعلق فیصلے کا اختیار مقامی انتظامیہ کو دیا ہے۔ ہمارے ضلع میں کورونا کا زور کم ہو چکا ہے اور دواخانوں میں 65% بیڈ خالی ہیں، لہٰذا احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط طریقے سے ضلع کے بازار شروع کرنے کی سفارش مقامی انتظامیہ سے کیے جانے کی اطلاع MLC امبداس دانوے و دیگر عوامی نمائندوں نے MCN کو دی ہے۔ آج سنبھاجی نگر کلیکٹر آفس میں میٹنگ ہونے کے بعد کووڈ کے کیسز کم ہو رہے ہیں، لیکن میوکر مائکوسس کے کیسز جو بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہو گیا اور میوکر مائکوسس کے لیے جو انٹروٹیریسن بھی انجیکشن لگتا ہے وہ اورنگ آباد یا سنبھاجی نگر ضلع کو کم مل رہا ہے، وہ گورنمنٹ سے زیادہ پیسہ لائے اور یہاں کے لوگوں کو سویدھا کیسی ملی، اس لیے سب لوگ پرتیندھی سب ادھیکاروں نے کوشش کیا اور اس کے اوپر ڈسیزن ہوا کہ زیادہ سے زیادہ انجیکشن لانے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ اس میں کچھ وشے پہ اچھی چرچا ہوئی، لیکن اب جو وشے ہے اپنے شہر کا ضلع کا جو کووڈ کا پرمان ہے کم ہوتے جا رہا ہے، تو سرکار کا گائیڈ لائن ہے 10% کے نیچے جس کا انکریز ہوگا اور جس کے 40% بیڈ خالی ہوں گے وہاں پہ ریلیکسیشن ملے گا۔ اپنا انکریز ریٹ صرف 6% ہے اور اپنے یہاں کے 67% بیڈ خالی ہے، اور اس لیے ہم نے سب نے مل کے شہر میں ریلیکسیشن دینا چاہیے، یہ مانگ کی ہے۔ اس ریلیکسیشن میں پرشاسن کووڈ کا پرادربھاو نہ بڑھے، کیونکہ اپنے بڑی محنت سے یہ کنٹرول میں لایا ہے اور ابھی وہ محنت پانی میں نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے اپنے سب نے مل کے خبرداری لینا پڑے گا، اس لیے کووڈ کا پرادربھاو بھی نہ ہو، ویاپاریوں کو سرو سامانیہ جنتا کو سہولت بھی ملے، ایسا ایک مدھیہ نکالا جائے گا اور اس کے بارے میں گھوشنا پرشاسن کے مادھیم سے شام تک کی جائے گی۔ مکھیہ منتری نے گھوشت کیا ہے کہ لاک ڈاؤن 15 جون تک رہے گا،
और लॉकडाउन का भी जो दुकानें खुली होती हैं वो 2 बजे तक खुली रहेगी। ऐसा है कि बहुत दिनों से व्यापारी का व्यापार बंद है, व्यापारी अपना पूरा ध्यान न दे सके, इसी कारण से उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति तो बहुत सी नीचे आई है, कोरोना के पेशेंट कम हो गए। ऐसी स्थिति में कोरोना का नियम पालकर सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगाना, अंतर रखना और ये नियम पालकर जो आपने किया तो और बढ़ाना, उसको व्यापारियों को बढ़ा के देना चाहिए। कोरोना का जोर कम हो जाने के बाद रियासती वजीर आला ने ब्रेक द चेन की पाबंदियों में 15 जून तक का इजाफा कर दिया है, मगर कुछ सहूलियात भी फराहम की हैं जिनका ऐलान आज शाम किया जाना था। कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है और न ही कोरोना ख़त्म हुआ है, लिहाजा शहरियान मोहतात रहकर हुकूमत व इंतज़ामिया की इस मर्ज़ पर काबू पाने में मदद करें। इस तरह की अपील पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने शहरियान से की है। महाराष्ट्र सरकार ने कल जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके तहत जो बंदिशें लगाई गई थी वो 15 जून तक बढ़ा दी गई है। उसमें कुछ छूट देने का प्रावधान है, उसके बारे में आज शाम तक सभी नागरिकों को जानकारी दी जाएगी। लेकिन सभी नागरिकों से ये अपील हम लोग करना चाहते हैं कि अभी भी कोविड के कुछ केसेस हमारे बीच हैं और इसको फैलने में और नंबर बढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो लगातार मास्क पहने रहें और ज़रूरत हो तब बाहर निकलें। और जो भी इसके बारे में डिटेल गाइडलाइन है वो आप सभी तक पहुंचाई जाएगी और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इन गाइडलाइन का आप सभी लोग ज़रूर पालन करें। अभी उस सब के बारे में शाम तक डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी और उसमें किस को दुकान को खोलने की किस तरीके से परमिशन होगी ये शाम तक सबको बताया जाएगा। तो देखिए मुझे नहीं मालूम किसकी क्या तैयारी है, लेकिन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन सबने फॉलो करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। MLA संजय शिरसाट की काविशों से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन देने के लिए एक कैंप लहूजी साड़वे हेल्थ सेंटर पर रखा गया। वाज़ेह रहे कि कोरोना से बचाव के टीके लगाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत फ़िलहाल हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 45 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान को ये टीके लगवाए जा रहे हैं। 18 ta 45 साल उम्र वाले अफराद के लिए भी मुहिम शुरू की गई थी, मगर वैक्सीन की किल्लत के सबब फ़िलहाल ये मुहिम रोक दी गई है, जबकि बच्चों के लिए अब तक टीका अंदाज़ी शुरू नहीं की गई। मगर हमारे अतराफ़ रहने वाले जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और अपाहज बच्चों के अलावा 18 ta 45 साल उम्र के माजूर अफराद के लिए MLA संजय शिरसाट की काविशों से आज रेलवे गेट से करीब तरुण भारत ऑफिस के सामने रेलवे स्टेशन MIDC मिलिंद नगर में मौजूद लहूजी साड़वे हेल्थ सेंटर पर एक कैंप लगाया गया और अपाहज अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इस कैंप का इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों किया गया। इस मौके पर MLA संजय शिरसाट के अलावा म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ के अलावा दीगर मेडिकल ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र व रियासत बिहार के कुछ अजला के लिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर और दीगर मेडिकल किट भिजवाए हैं। औरंगाबाद का भिजवाया गया सामान MP सैयद इम्तियाज़ जलील ने आवाम के नाम मंसूब किया। नाजरीन, कोरोना के तबाहकुन वबाई हालात में मुल्क भर में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दीगर मेडिकल किट्स की शदीद किल्लत हो गई थी और वक्त पर ऑक्सीजन न मिलने या वेंटिलेटर्स न मिलने के सबब कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। यही सूरत हाल औरंगाबाद ज़िले में भी पैदा हो गई थी। इन हालात के पेश नज़र MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट एंड एक्सेस फाउंडेशन की जानिब से बिहार, मालेगांव, धूलिया और औरंगाबाद के लिए जदीद वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीन, थर्मामीटर प्लस ऑक्सीमीटर समेत मेडिकल किट भिजवाई हैं, जिसका पहला कंसाइनमेंट औरंगाबाद पहुंच चुका है। आज दोपहर 3 बजे
MP इम्तियाज जलील ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से भिजवाए गए सामान आवाम के नाम मंसूब किए। इस ज़िमन में रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने बताया कि इन संगीन हालात में गरीब आवाम को मेडिकल एड मिल सके, इस गर्ज से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में कोविड हेल्पलाइन एंड ऑक्सीजन बैंक कायम किया है, जिसके तहत ये मदद महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा मुल्क के दीगर मकामात पर भिजवाई गई है। ये वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे, इन सब बातों से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात उन्होंने MCN को फराहम की। कोरोनाच्या काळात आपल्याला माहीत असेल की ऑक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्सची किती गरज होती, व्हेंटिलेटर्सची किती गरज होती आणि दुसरे जे इक्विपमेंट्स आहे ते गरीब लोकांना परवडत नाही होते। त्या अनुषंगाने बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेबांनी हे निर्णय घेतला की त्यांच्या ट्रस्टच्या मार्फत त्यांनी हे सगळं विकत घेतले आणि जिथे आमचे लोक आहे बिहारमध्ये खूप मोठा कन्साइनमेंट त्यांनी तिथे पाठवलेला आहे, कारण बिहारमध्ये कशी परिस्थिती आहे मेडिकलची हे सगळ्यांना माहीत आहे। ते औरंगाबादसाठीही त्यांनी एक कन्साइनमेंट पाठवलेला आहे। औरंगाबाद व्यतिरिक्त मालेगाव आणि धुळे जिथे आमचे आमदार आहे त्यांच्यासाठीही एक कन्साइनमेंट पाठवण्यात आलेला आहे आणि त्यामध्ये व्हेंटिलेटर्स आहे, ऑक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स आहे, ऑक्सिमीटर्स आहे, थर्मोमीटर्स आहे, हे जे मेडिकलचे किट्स आहे, औषधांचे किट आहे, हे सगळं जे लोकांना काही प्रमाणात लोकांना सवलत मिळेल त्या अनुषंगाने हे कन्साइनमेंट पाठवण्यात आलेलं आहे। मी माझ्या वतीने आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने असदुद्दीन अवैसी साहेब, अकबर अवैसी साहेब त्यांचा खूप खूप धन्यवाद देतो। आणि हे ऑक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स ज्या लोकांना ऑक्सिजनची कमतरता भासत आहे आणि हॉस्पिटलमध्ये त्यांना बेड मिळत नाही, त्यांच्या घरी आम्ही पाठवून त्याचं सगळं जे डेमॉन्स्ट्रेशन आहे कशा वापरण्यात येतील काय ते खूप सिंपल आहे। आमची ही टीम आम्ही तयार करून ज्या लोकांना ते पाहिजे आम्ही त्यांना पाठवू आणि जे व्हेंटिलेटर्स आहे ते आम्ही कोणत्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलला आम्ही देऊ आणि त्यांच्याकडून एक करार करून घेऊ की जे व्हेंटिलेटर्स आम्ही तुम्हाला देत आहे ते गोरगरिबांसाठी वापरण्यात यावी आणि त्याचा पैसा जे आहे ते गोरगरिबांकडून आपण आकारू नये, अशा प्रकारचा एक एग्रीमेंट आम्ही त्यांच्याकडून करून घेणार आहे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अचानक पाचोड़ के देही अस्पताल को विजिट की और यहाँ ज़ेर इलाज कोरोना मरीजों से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की और वबा की मुतवक्को तीसरी लहर के एहतियाती व तदारुकी इक़दामात का जायज़ा लिया। गुज़िश्ता माह फरवरी ही से शहरी हदूद के साथ साथ ज़िला भर के देही इलाकों में भी कोरोना की दूसरी वबाई लहर ने आनन फानन शदीद कहर बर्पा कर दिया था, लेकिन हमारी हसास और सरगर्म इंतजामिया और इलाका भर के समझदार आवाम ने इंतहाई सूझबूझ और नज़्म ज़ब्त और एहतियात व ताउन से कुछ ऐसा कर दिखाया कि यह लहर अब काबू में दिखाई दे रही है। मरीजों की तादाद में खातिरखा कमी आ गई है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया अभी भी कोई ख़तरा मोल लेने तैयार नहीं है और आवाम को आगाह किया जा रहा है कि वबाई ख़तरा अभी टला नहीं है। एक तरफ वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की गई है तो दूसरी जानिब ब्रेक द चैन के उसूल व पाबंदियों पर अमल आवरी अब भी जारी है। आला अफसरान समेत तमाम अमले अब भी खिदमात में लगे हुए हैं। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने गुज़िश्ता रोज़ अचानक ताल्लुक़ा पैठन के मज़ाफ़ात पाचोड़ के देही अस्पताल को विजिट किया और यहाँ हुनूज ज़ेर इलाज 6 कोरोना मरीजों की हालत का जायजा लिया। इन 6 मरीजों में अभी 2 मरीज ऑक्सीजन बेड पर ज़ेर इलाज हैं। सुनील चौहान ने इस कोविड सेंटर के तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया और डॉक्टरों से तबादला ख्याल किया और उन्हें मजीद क्या सहूलतें दरकार है इस मुतालिक जानकारी ली तो डॉक्टर्स ने यहाँ ऑक्सीजन एम्बुलेंस, मेयारी दर्जे की एक्सरे मशीन का मुतालबा किया और कहा कि इसके सबब फौरी सिटी स्कैन के लिए की जाने वाली भागदौड़ व दिक्कत में कुछ कमी आएगी। डॉक्टर संदीप काले की इस तजवीज़ पर जिला कलेक्टर ने इन सहूलियात के साथ साथ जल्द ही इस सेंटर को 40 सिलेंडर और ऑक्सीजन प्लांट मुहैया करवाने का तयक्कुन दिलवाया। इस मौके पर पैठन पंचायत समिति के उपसभापति कृष्णा भुमरे, सरपंच शिवराज भुमरे, नायब सरपंच शिवाजी भाल सिंगे और देही अस्पताल के डॉक्टर्स व अमला मौजूद थे। आज आलमी तंबाकू मुखालिफ दिन है। इस दिन की मुनासिबत से डॉक्टर नीता पाडलकर ने शहरियान से अपील की है कि तंबाकू और तंबाकू आमेज़ अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि ये बहरहाल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तंबाकू बहुत जानलेवा भी बीमारी हो सकती है, कैंसर की वजह से मृत्यु भी आ सकता है। ये इसका कायदा भी है कि तंबाकू जो वर्क प्लेस है यहाँ नहीं खाना। हमने सब जो कार्यालय है जहाँ पे सब जो कायदा है उसका एग्जिबिट किया है, वो पोस्टर्स लगाए और हमारे जो हेल्थ वर्कर है जो एरिया में जाते हैं तो सभी नागरिकों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है और जिनको ऐसे ये कैंसर से और इससे अच्छे हुए वाले लोग हैं उनका एक्सपीरियंस भी हम ग्रुप मीटिंग में लेके सबको समझाते हैं कि देखिए
मेरी भी ये बीती है, आप इसका ध्यान रखें। इस तरीके से हम उसका जन जागरण भी कर रहे हैं। रियासती हुकूमत के 383 करोड़ के फंड से हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के जरिए बीड़ बाईपास रोड को चौपदरी बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ रुकन असेंबली संजय शिरसाट ने इस 4 लेन रास्ते के काम का मुआयना किया। इत्तलात के मुताबिक इस मौके पर संजय शिरसाट ने MIT कॉलेज के सामने के पुल के काम को जल्द शुरू करने की भी हिदायत महकमा तामीरात आम्मा के अफसरान को दी हैं। बताया जाता है कि जल्द ही रियासत के तामीरात आम्मा के वजीर अशोक चौहान इस काम का मुआयना करेंगे। ये रास्ता यहाँ महानुभाव आश्रम से कैम्ब्रिज स्कूल तक मिनजुमला 17 किलोमीटर पर वाक़ है और इस बाईपास रोड पर हमेशा भारी ट्रैफिक रहता है। इस रास्ते को वसाअत देकर 4 लेन बनाने के दौरान ही इस पर वाक़े पुरहुजूम चौराहों पर ओवरब्रिज बनाने के काम जारी हैं। अपने इस जायज़ाती दौरे के दौरान शिरसाट ने मशवरा दिया कि रोड के दोनों जानिब 7-7 मीटर के सर्विस रोड भी छोड़े जाएं ताकि शहरियान को आवाजाही में सहूलत हो। इस मौके पर संजय शिरसाट के हमरा उप शहर प्रमुख राजू राजपूत, रमेश बाहुले, सिद्धांत शिरसाट, उप विभाग प्रमुख रंजीत ढेपे, सब डिविजनल इंजीनियर शैलेश सूर्यवंशी, ब्रांच इंजीनियर सुनील कुलसे, रेसिडेंसी इंजीनियर अनिल कुबड़े व दीगर मौजूद थे। जिला परभनी के शहरपूर्णा का निज़ाम सफाई बुरी तरह मुतासिर है। शहर भर की नालियां उबल कर सड़क व रास्तों पर गंदा पानी बह रहा है और चार जानिब ताफुन फूट पड़ा है। साकिनान ने फौरी तवज्जो का मुतालबा बलदी इंतज़ामिया से किया है। इस मामले में मजीद इत्तलात यूँ है कि नालियों की तामीर और मरम्मत एक तवील अरसे से न किए जाने के सबब नालियाँ टूट फूट गई हैं, जिसकी वजह से ख़ासतौर पर शहर के मस्तानपुरा इलाका, वार्ड नंबर 6 और कई इलाकों में नालियाँ लबालब होकर उबल रही हैं। नालियों की सफाई की जानिब भी बल्दी इंतज़ामिया ध्यान नहीं देता और नालियों का गंदा पानी जाबजा रास्तों पर बहता है, जिसकी वजह से आवाजाही में भी राहगीर व व्हीकल सवारों को दिक्कतें पेश आती हैं और इस आलूदा पानी से उठने वाले ताफुन के सबब साकिनान की सेहत आम्मा इस वबाई दौर में मजीद खतरात की शिकार हो चुकी है। यहाँ की सदर बल्दिया, अराकीन बल्दिया और चीफ ऑफिसर समेत सफाई इंतजामिया के अफसरान व अमले इस कदर गहरी नींद में सोए हुए हैं कि बारिश का मौसम सर पर आ गया है, तब भी उनकी बंद आंखें नहीं खुल रही हैं। सदर बल्दिया और CEO इस मामले में फौरी तवज्जो दें और शहर के निज़ाम सफाई को चुस्त दुरुस्त करवाएं। इस तरह का मुतालबा समाजी कारकुन राजू नारायणकर, नागेश एंगड़े, विशु पठान और दीगर शहरियान ने किया है। ताल्लुका सिल्लोड़ के गोलेगांव के करीब जुई नदी पर बना डायवर्सन पुल गुज़िश्ता दिनों बारिश में बह गया तो मुताल्लिका गुत्तेदार ने महज 6 घंटों में दूसरा मुतबादिल पुल तामीर कर दिया, जिसके सबब औरंगाबाद जलगांव रोड का ट्रैफिक बहाल हो गया। वाज़ेह है कि अजंता ताल्लुका सिल्लोड़ और अतराफ के दही मकामात पर हुई तूफानी बारिश के सबब शनिचर की शब गोलेगांव से गुजर रही जुई नदी पर बनाया गया डायवर्शन पुल पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसकी वजह से औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया था और इस सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गई थी। अजंता पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर गिरिधर ठाकुर, हाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट अनीता जमादार, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश बाले, दिनेश सेरुलकर, अबू बकर शेख, समाधान एवले, विनोद झलवार, अजहर खान, बिट जमादार, आबा साहब ओहाड़, बाबा चौहान, अकरम पठान, बाबूराव साबड़े, संदीप जाधव और दीगर पुलिस मुलाजिमीन ने लाइट व्हीकल्स को अनवा शिवना से अजंता उड़नगांव सोएगांव की तरफ डाइवर्ट किया, जिसके बाद गाड़ियों की कतारें कुछ कम हुई। दूसरी तरफ RS कामठे इंफ्रा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर असद मुबीन और उनके साथियों ने 6 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद डायवर्शन के लिए एक नया आर्जी पुल तामीर किया, जिसकी वजह से औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर ट्रैफिक इतवार की सुबह बहाल हो गया। मुताल्लिका कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर असद मुबीन का कहना है कि जो बेमौसमी बारिश हुई है उसकी वजह से जुई नदी में पानी का बहाव तेज़ हो गया था और वहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से पुल की तामीर के लिए लगाई गई सैनिटरी प्लेट्स और दीगर सामान बहकर ज़ाया हो गया है और कंपनी का भी बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी ने यहां दोबारा आर्जी डायवर्शन पुल तामीर कर लिया है, मगर असद मुबीन ने पुलिस महकमे के आला अफसरान से अपील की है कि इस आर्जी पुल से सिर्फ लाइट व्हीकल्स को ही जाने की इजाज़त दी जाए और हेवी व्हीकल्स को किसी दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा हादसा दोबारा पेश न आने पाए। ब्रेक द चेन के तहत आयत पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले जिन कारोबारी इदारों को सील लगाई गई है वो आइंदा पीर के बाद खोल देने का तयक्कुन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतासरा दुकानदारों के एक वफद को दिया है।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह ब्रेक द चेन के तहत आयद करदा पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ दुकानदार छुपे तरीके से कारोबार कर रहे थे, लिहाजा उन पर शिकंजा कसने की गर्ज से ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, FDA और पुलिस महकमे के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए कदीम शहर की कई दुकानों को सील लगा दी गई थी। मुतासिर दुकानदारों के एक वफद ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और उनसे अपील की कि इन दुकानों को लगाई गई सील हटा दी जाए, जिस पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि आइंदा पीर से दुकानों को लगाई गई सील खोलने की शुरुआत की जाएगी। आज शाम अचानक तेज़ हवाओं के साथ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहरियान के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजिमीन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाजरीन, आप जो मनाजिर देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन इलाके के हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर व अतराफ में मतला अबर आलूद है, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा हो गया था और शहरियान बेहाल होने लगे थे। गुज़िश्ता दिनों देही मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बरसात हुई, जिसकी वजह से कई पुल मुनहदिम हो गए। रास्तों के किनारे मौजूद क़दीम और घने दरख्त जड़ से उखड़ गए तो कई मकानात की छतें उड़ गईं। आज शाम शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में ज़ोरदार बारिश हुई। अचानक हुई बरसात से न सिर्फ शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजिम भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर दौड़ते दिखाई दिए। एक 21 साला खातून से पहचान के बाद क़ुर्बतें बढ़ाकर उसके साथ इश्क व मोहब्बत की फरेबदेही और शादी का झांसा देकर सारी सरहदें पार कर लेने के बाद इस खातून से धोखा करते हुए दूसरी लड़की से ब्याह रचाने वाले जवान बामने के खिलाफ मुतासरा खातून ने सातारा पुलिस थाना में शिकायत दाखिल करवाई। इस मामले में सातारा पुलिस थाना के इंस्पेक्टर सुरेंद्र माड़ाले ने दी मालूमात के मुताबिक कुछ साल पहले इस खातून की मुलजिम विट्ठल से शनासाई हुई। बाद अज़ा नज़दीकियाँ बढ़ गईं। विट्ठल ने इसे इश्क व मोहब्बत और शादी कर लेने की दुहाइयाँ दी, उसके साथ मुतवातिर जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए और जब वो उम्मीद से हो गई तो मुख्तलिफ हीले बहाने बतलाकर उसका इस्कात करवा दिया। खातून इस उम्मीद पर कि विट्ठल उसके साथ शादी कर लेगा सब कुछ बर्दाश्त करती रही। ताहम कुछ रोज़ कबल से विट्ठल ने खातून से तमाम ताल्लुकात तोड़ लिए तो खातून भी टूट गई और उसको जब यह पता चला कि विट्ठल ने किसी और लड़की से शादी कर ली है तो उसकी कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे गई और उसने विट्ठल वामन बामने के खिलाफ सातारा पुलिस थाने में इंसाफ की गुहार लगाते हुए फरियाद दाखिल की है। लॉकडाउन के दौरान अपने गांव गए हुए मुलाजिम के ज्योति नगर वाक़े मकान में नक़बज़नी करके 8.5 तोले के ज़ेवरात और 1.5 लाख नकद रकम सारिक ले उड़े। मुताल्लिक़ा पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। इस वारदात का इल्म गुज़िश्ता रोज़ इतवार की दोपहर को हुआ। तफसीलात के मुताबिक ज्योति नगर के साकिन गोरखनाथ ज़िला सांगली के मुतवत्तिन हैं। वो लॉकडाउन के हालात के सबब एक माह कबल अपने अहले खाना के समेत अपने वतन चले गए थे और उनका मकान मुकफ़ल था। इस दौरान सारिकों ने उनके घर में नक़ब लगाई और 1.5 लाख नकद रकम समेत कमोबेश 8 तोले के सोने के ज़ेवरात चोरी कर लिए। गुज़िश्ता रोज़ इतवार को जब गोरखनाथ वापस लौटे तो उन्हें इस चोरी का इल्म हुआ। उन्होंने फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दी तो उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में देर रात गए चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस सारिकों का सुराग लगाने में मसरूफ़ तहक़ीक़ात हो चुकी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर अतराफ में निहायत अकीदत मगर सादगी से मनाई गई आजहानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद। ब्रेक द चेन के तहत लगाई गई पाबंदियों की मियाद में वजीर आला ने किया 15 जून तक का इजाफा, मगर शहरियान की सहूलत के लिए दी जाएगी कुछ छूट। शहरियान से मोहतात तरीके से कारोबार करने की अपील। MLA संजय सिरसाट की काविशों से जिस्मानी तौर पर अपाहिज शहरियान के लिए शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम। रेलवे स्टेशन MIDC इलाके के लहूजी सालवे हेल्थ सेंटर में किया गया इंतजाम। और
कोरोना हालात से परेशान जरूरतमंद शहरियान के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भिजवाए जदीद वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और मेडिकल किट्स। खानगी दवाखानों के जिम्मेदारान से माहिदा करके गरीबों को मुफ्त में फराहम करवाए जाएंगे वेंटिलेटर्स, कहा MP इम्तियाज जलील ने। नाजरीन, इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।